Hello students, this is our 10th chapter Human Health and Diseases. In the previous part of the video we were studying about immunity and we have stopped that video in middle only. So we will complete that topic today. We were on passive immunity. Passive immunity is acquired when ready-made antibodies are received by the body cell. बॉडी सेल को जब रेडी मेड एंटीबॉडीज़ रिसीव होती है तब वो एंटीबॉडीज़ को बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी. दैट इज़ बॉडी सेल डू नॉट टेक पार्ट इन एनी एक्टिव पार्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनिटी. Passive immunity can be acquired either naturally or artificially. Okay then. Moving to the next slide. First है natural acquired passive immunity. Before birth, maternal antibodies are transferred from mother to fetus through placenta. Placenta के through mother से fetus तक antibodies transfer होती है. And after birth, मतलब birth होने के बाद antibodies are transferred from mother to fetum through colostrum. कोलेस्ट्रम के बारे में हम लोग ने पहले के वीडियोस में पढ़ा है. कोलेस्ट्रम इज़ फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर एंड दिस कंटिन्यू थ्रू आउट द पीरियड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. जितने भी टाइम मदर अपने चाइल्ड को ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है तब मदर अपने एंटीबॉडीज़ अपने चाइल्ड के बॉडी में ट्रांसफ़र कर रही है ताकि वो बेबी एंटीजन से लड़ सके और अपने आप का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर सके. द एंटीबॉडीज़ रिसीव्ड बाय बेबी फ्रॉम मदर रिमेन इन द बॉडी फॉर द शॉर्ट टाइम. Therefore, natural acquired passive immunity is short-lived. Antibodies are lived in the body for a very short time. इसीलिए ये जो natural acquired passive immunity है, it is for short period only. Moving to the next है हमारा artificial acquired passive immunity. This immunity is developed by injecting previously prepared antibodies using serum from humans or animals. ये एंटीबॉडी जो है वो आर्टिफिशियल है, इंजेक्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी में यूजिंग सीरम फ्रॉम ह्यूमंस और एनिमल्स. इसके एग्जाम्पल है एंटीबॉडीज़ ओब्टेन्ड फ्रॉम हाइपर इम्यूनाइज्ड हॉर्सेस. जो बहुत ज़्यादा इम्यूनाइज्ड हॉर्स होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हॉर्सेस होते हैं, उनमें से एंटीबॉडीज़ ओब्टेन करते हैं and they are injected to human against rabies pathogens. Important students, antibodies obtained from hyperimmunized horses are injected to humans against rabies pathogens and it is short lived. तो ये हो गया हमारा पैसिव इम्यूनिटी, जिसके हम लोग ने दो टाइप्स पढ़े, natural and second is artificial. Moving to next topic, वो है cells of immune system. There are two main type of cells involved in the working of immune system. दो मेन टाइप के सेल्स हैं जो इम्यून सिस्टम की वर्किंग में हेल्प करते हैं. दे आर, फर्स्ट है लिम्फोसाइट and second is antigen presenting cells. First is lymphocyte, second is antigen presenting cells. Okay, moving to the next slide. पहले हम लोग लिम्फोसाइट के बारे में स्टडी करते हैं. Lymphocyte are the main cell of the immune system. Very important. लिम्फोसाइट के वजह से ही हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्गर है. अगर लिम्फोसाइट नहीं होगा तो हमारा इम्यून सिस्टम अपने आप वीक हो जाएगा. सो लिम्फोसाइट आर द मेन सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम. दे
like the other blood corpuscles, arises from the stem cell. The hemocytoblast present in liver of the fetus and in the bone marrow in adults. Some of them undergo differentiation in the gut associated bursal lymphoid tissue, that is tonsils या फिर Peyer's patches, and are called bursal or B lymphocytes. What does this mean, students? लिम्फोसाइट जो है हमारा वो मेन सेल है इम्यून सिस्टम का। जैसे दूसरे ब्लड कॉर्पसल्स है, दूसरे ब्लड कॉर्पसल्स कौन से हैं? आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, ये सारे ब्लड कॉर्पसल्स हैं। ये सारे ब्लड कॉर्पसल्स स्टेम सेल से अराइज हुए हैं। वैसे ही हमारा लिम्फोसाइट भी स्टेम सेल से अराइज हुआ है। द हीमोसाइटोब्लास्ट, ये जो हीमोसाइटोब्लास्ट है ये प्रेजेंट होता है इन द लीवर ऑफ द फीटस एंड इन द बोन मैरो इन अडल्ट। इम्पॉर्टेंट है ये वाला पार्ट फॉर MCQs। Hemocytoblast is present in liver of the fetus and in the bone marrow in adults. Some of them undergo differentiation in the gut associated bursal lymphoid tissue, that is tonsils, Peyer's patches, and are called bursal or B lymphocytes. Other are differentiated in the thymus gland and are termed as T lymphocytes. The mature lymphocyte pass into body fluid. जो mature lymphocyte है वो पास होता है into the body fluid. Body fluid कौन से है? Blood and lymph, and then they are circulated in the body. ये हो गया हमारा lymphocyte. So these are the type of lymphocyte. T lymphocyte होता है, एक B lymphocyte होता है और एक NK that is natural lymphocyte होता है. T lymphocyte क्या करता है? It participate in the processes of cellular immunity. B lymphocyte कर रहा है participate in the processes of humoral immunity. Natural cytotoxicity agents, cancer cell एंड वायरसेस इन्फेक्टेड सेल में हमारा नेचुरल लिम्फोसाइट हमें हेल्प करता है. सो स्टूडेंट्स, टोटल लिम्फोसाइट के 3 टाइप है. एक है टी लिम्फोसाइट, एक है बी लिम्फोसाइट और थर्ड है नेचुरल लिम्फोसाइट. एंड सबके अपने अपने अलग यूजेस हैं. देन many of them in the lymph node. The B lymphocyte and T lymphocyte form humoral or antibody mediated human immune system और जो and cell mediated immune system respectively. अभी हम लोग ने पढ़ा B lymphocyte क्या करता है, वो फॉर्म करता है ह्यूमरल एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम और टी लिम्फोसाइट सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम रिस्पेक्टिवली फॉर्म करता है. AMIS इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम. CMIS जो है वो सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम का है. बोथ द इम्यून सिस्टम नीड एंटीजेंस टू कम इनटू एक्शन. अगर उन लोगों के सामने एंटीजेंस आएंगे, मतलब उनके जो दुश्मन है, वी कैन से जो इनके एनिमीज़ है जिनको उन्हें मारना है, तो ही ये लोग एक्शन करेंगे. बट दे रिस्पॉन्ड इन डिफरेंट वेज. इन दोनों का रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ही अलग होता है अपने अपने तरीके से. देन मैकेनिज़्म ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ टी लिम्फोसाइट टू एजेंट्स. जो हमारा टी लिम्फोसाइट है वो कैसे रिस्पॉन्स करता है. ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द एन एंटीजन, अ टी लिम्फोसाइट फॉर्म क्लोन्स ऑफ टी सेल्स. क्या कर रहा है ये?
On coming in contact with an antigen, T lymphocyte forms clones of T cell. मतलब T cell का ऐसे clones बनाता है वो, which are similar but they perform different function. ये सारे similar है but ये सारे के सारे का function different होगा. The clone has 4 types of T lymphocyte. वो क्लोन के पास 4 टाइप के टी लिम्फोसाइट होते हैं. पहला है फर्स्ट क्लोन का टाइप है. फर्स्ट क्लोन का फर्स्ट टाइप ऑफ टी लिम्फोसाइट है हेल्पर टी सेल. हेल्पर टी सेल. Sanitized helper T cell produce lymphokines for performing several types of functions like proliferation of other T cell, simulation of B lymphocytes, macrophages, etc. हेल्पर टी सेल क्या कर रहा है? वो सैनिटाइज्ड कर रहा है हेल्पर टी सेल को, सेंसिटाइज्ड करता है हेल्पर टी सेल को और वो प्रोड्यूस करता है लिम्फोकाइंस. अब लिम्फोकाइंस का फंक्शन है टू परफॉर्म सेवरल टाइप ऑफ फंक्शन लाइक पॉलीफरेशन ऑफ अदर टी सेल, दूसरे टी सेल को पॉलीफरेट करना, या साइमुलेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट या माइक्रोफेजेस एक्सेट्रा. देन सेकेंड है किलर टी सेल और साइटोकिन सेल. क्या है? किलर टी सेल और साइटोकिन टी सेल. दे डायरेक्टली अटैक एंड डिस्ट्रॉय इन्वेडिंग माइक्रोब्स. ये लोग क्या करते हैं? डायरेक्टली अटैक करते हैं या डिस्ट्रॉय करते हैं उन माइक्रोब्स पे जो कि इन्वेड कर रहे हैं अंदर की तरफ, या फिर इन्फेक्टेड बॉडी सेल पे या फिर कैंसर सेल पे. दिस किलर टी सेल वो बाइंड होता है to infected cell and secrete perforins. This killer T cell bind with infected cell and there it secrete perforins. Then perforin form a hole in infected cell. अब ये परफोरिन क्या करती है? एक होल बनाती है in the infected cell. It also releases substance that kill the cell. एक ऐसा सब्सटेंस रिलीज़ करती है जो ये सेल को किल करे. Hence the name साइटोटॉक्सिन टी सेल. इसीलिए क्या नाम दिया गया इसे? साइटोटॉक्सिक टी सेल. साइटो मतलब होता है सेल, टॉक्सिक मतलब कोई चीज़ जो हार्मफुल है, एंड टी सेल का टी सेल. Hence the name is given cytotoxic T cell. Third है suppressor T cell. This cell suppress entire immune system against attack on the own body cell. ये सेल क्या करती है? पूरे जो एंटायर इम्यून सिस्टम है उसे सप्रेस करती है अगेंस्ट द अटैक ऑन द ओन बॉडी सेल. जो मेमोरी टी सेल है, फोर्थ इज़ मेमोरी टी सेल. दिस आर प्रीवियसली sensitized cell which retain the sensitization memory for long time in the future. ये प्रीवियसली कौन सा सेल था? सेंसिटाइज्ड सेल था जो रिटेन करती है खुद की सेंसिटाइजेशन मेमोरी फॉर लॉन्ग टाइम इन द फ्यूचर. मतलब इस सेल को पता होता है कि ये वाला सेल जो है वो अपनी हमारी बॉडी का है और ये अच्छा है, इसकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए इसको मेमोरी टी सेल बोलती है. तो ये अपने वाले सेल पे अटैक नहीं करता, ये जो दूसरा एंटीजन या फॉरेन पार्टिकल बाहर से आया है उस पे अटैक करता है. तो ये हो गया हमारा सस्पेंसर टी सेल. फोर्थ है मेमोरी टी सेल. हम लोग ने 4 सेल के टाइप पढ़े. पहला पढ़े हेल्पर टी सेल, सेकेंड इज किलर टी सेल, थर्ड इज सप्रेसर टी सेल, फोर्थ इज मेमोरी टी सेल. ये जो 4 टाइप्स है ये सारे क्या है? ये क्लोन्स है. द क्लोन्स हैज़
4 types of T lymphocytes. Moving to the next slide. अब हम लोग बी लिम्फोसाइट के बारे में पढ़ते हैं. Mechanism of action of B lymphocyte to antigen. Mechanism of action of B lymphocyte to antigen. B lymphocytes are sensitized directly by both antigen as well as by helper T cell. By both. Both कौन है? Antigen as well as helper T cell. Activated B lymphocyte, जो B lymphocyte activated है, जो B lymphocyte activated है, it multiplies very fast to produce clone of plasma cell and memory B cell. वो अपने आप को जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करेगा so that he can produce clone of plasma cell and memory B cell. The plasma cell produce specialized glycoproteins called antibodies. उसे क्या बोलते हैं? Antibodies, which are circulated through body fluid. बॉडी फ्लूइड को क्या बोलते हैं? ह्यूमर्स बोलते हैं. बॉडी फ्लूइड हमारे बॉडी में कौन से है? एक है ब्लड, दूसरा है लिम्फ. तो ये प्लाज्मा सेल क्या कर रहे हैं? इट प्रोड्यूस स्पेशलाइज्ड ग्लाइकोप्रोटीन. एक ग्लाइकोप्रोटीन करके स्पेशलाइज्ड सेल है, उस प्रोटीन को प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड दैट इज़ कॉल्ड एंटीबॉडी. स्पेशलाइज्ड ग्लाइकोप्रोटीन एंड दैट इज़ कॉल्ड एंटीबॉडी. अब ये एंटीबॉडी हमारे पूरे बॉडी के फ्लूइड में सर्कुलेट होती है like blood and lymph. The antibody molecule may bind to a cell membrane or they remain free. Then the free antibodies has 3 main function. जो antibody free है, okay, the free antibodies have 3 main function. पहला function है उसका agglutination of particle. agglutination फर्स्ट फंक्शन है उसका agglutination. agglutination क्या होता है? it include bacteria and viruses. the immobilized mass is then engulfed by phagocytes. ये हो गया agglutination of particular matter. सेकेंड है opsonization और कोटिंग ऑफ बैक्टीरिया. ऑप्सोनाइजेशन और कोटिंग ऑफ बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया पे कोट डाल दे रहे हैं. तो अगर एक कोट डाल दिए तो वो फिर कोई भी हमें हार्मफुलनेस नहीं प्रोवाइड करेगी. ऑप्सोनाइजेशन और कोटिंग ऑफ बैक्टीरिया टू फैसिलिटेट देयर सब्सिक्वेंट phagocytosis by macrophages. थर्ड है neutralization of toxins released by bacteria, for example tetanus toxin. neutralization of toxins, जो टॉक्सिन है हमारी बॉडी में उसे न्यूट्रल कर दे रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है ताकि जो बैक्टीरिया बन रहे हैं वो भी पूरे न्यूट्रलाइज हो जाए. इसका एग्जाम्पल है टेटानस टॉक्सिन. ईच एंटीबॉडी इज स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर एंटीजन. हर एंटीबॉडी स्पेसिफिक है, मतलब ये एंटीबॉडी इस एंटीजन के लिए बनी है, इस तरीके से वो लोग स्पेसिफिक होते हैं. ईच एंटीबॉडी इज स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर एंटीजन. तो यहाँ पे क्या हम लोग ने पढ़ा? मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट टू एंटीजन. इसमें 3 मेन फंक्शंस पढ़े. फर्स्ट था एग्लूटिनेशन, सेकेंड इज़ ऑप्सोनाइजेशन, थर्ड है न्यूट्रलाइजेशन. क्लियर विद दिस? मूविंग टू द नेक्स्ट है हमारा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल,
जो कि सेकंड पार्ट था इस टॉपिक में। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है, इट एनगल्फ इन्वेडिंग पैथोजन एंड प्रोसेस द एंटीजन। जो पैथोजन इन्वेड कर रहे हैं हमारी बॉडी में, उसे एनगल्फ कर लेना। ओके, ए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एनगल्फ इन्वेडिंग पैथोजेंस। उन्हें क्या कर रहे हैं? एनगल्फ मतलब खा जा रहे, अपने अंदर निगल रहे हैं। engulf invading pathogens and process the antigen. Then the processed antigen are present on their own surface. अब ये जो प्रोसेस एंटीजेंस है वो हमारे खुद के सरफेस पे बैठ जाते हैं। These cells are able to deliver a stimulatory signal that is necessary for the activation of helper T cell. ये जो सेल है ये एक स्टिमुलेटरी सिग्नल को डिलीवर करेंगे। अब इस सिग्नल के वजह से जो हमारे हेल्पर टी सेल है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। इसको बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स।